Let's understand today how drinking healthy Kangen water supports our health from a very beautiful and humane lady. She is a senior dental surgeon, root canal and aesthetic dentistry specialist. She did her master's in implantology from New York University, USA, and is practicing since 2009 and running her own clinic as Cullinan Dental in Indirapuram. Kangen journey started in her life by introduction through one of her own patients in 2020. She installed Kangen machine in her clinic for her patients' wellness, and her clinic was the first dental clinic in India powered by Kangen water. Kangen water is a part of protocol of her clinic, and she has also donated one Kangen machine in Indirapuram Gurudwara for wellness of Sangat visiting Gurudwara. Friends, with big round of applause, let's welcome on stage Dr. Divya. So इसे सब प्लीज एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ सब. पानी हूँ मैं, राइट. सो जल में अमृत है, जल में औषधि है, ये हम सब जानते हैं, और ये मैं नहीं बोल रही, ऋग्वेदा में लिखा है. पानी का काम तो पानी ही कर सकता है बाय गॉड, पर कौन सा पानी? टैप वाटर, स्टैंड पाइप, बोरहोल, वेल, टैंकर या ओपन सोर्स? क्या आपका पानी कैंगन है? किस किस का पानी कैंगन है? रेज योर हैंड्स. ग्रेट. So welcome to the world of Kangen. Originated from Osaka. Kangen means return to origin. So basically it's an ionizer, Enagic Kangen water ionizer. And what are the ionizers? So a water ionizer, also known as alkaline ionizer, is a home appliance that uses electrolysis to separate water into acidic and alkaline components, and said to be having health benefits. 3 properties हैं इसकी. The first one is it is full of antioxidants and it has active hydrogen. Second is it is alkalized and it is microclustered. So एक एक करके हम इन properties को समझेंगे. किसी को free radicals के बारे में पता है? अपनी body में जो free radicals होते हैं उसके बारे में कुछ पता है किसी को? Or is it a new term to you all? Okay. फाइन. आपके घर में कभी पार्टी हुई है और आपने 5 लोगों को बुलाया और 5 लोगों के लिए खाना बनाया और 5 लोगों ने खाना खा लिया, बट पीछे से 5 लोग और आ गए, तो अभी आप क्या करोगे? हाँ, बाहर से ऑर्डर करोगे, राइट. सो ऐसे ही हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो हमारे खुद के एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर अपना मॉलिक्यूल एक कंप्लीट करते हैं, और अगर बहुत एक्सेस में हो जाए तो वही एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बाहर से चाहिए. सिमिलरली जो फ्री रेडिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स में होते हैं और बहुत ही अनस्टेबल होते हैं. आपकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उनके साथ मिलेंगे और अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, बट अगर उन्हें नहीं मिला तो वो आपकी बॉडी पर हावी हो जाएंगे, तो आपको उन्हें बाहर से खाना खिलाना पड़ेगा, और वो कहाँ से आएगा? कभी किसी ने ग्रीन टी पिया है? डॉक्टर ने बोला ओमेगा 3 कैप्सूल्स खाने के लिए, नहीं बोला कभी? कभी खाया है खुद से भी? कभी नहीं खाया है. ग्रीन टी पिया है, लेकिन क्यों पीते हो? फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है, वो तो अभी पता चल रहा है. मैं तो ऐसे पी लिया, सब पी रहे तो मैं भी पीऊंगा, राइट? ओके, फाइन. सो जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं एंड फ्री रेडिकल हावी हो जाते हैं, तो आपकी एक सिचुएशन हो जाती है, वो होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. फाइन. तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में होती है बहुत सारी डिजीजेस. सो आपकी बॉडी में होती है बहुत सारी डिजीजेस, एंड व्हाट ऑल दोज डिजीजेस आर? आगे नहीं आ रहा. Change the slides, please.
मेरे में एक बार लगा के देखिए सर, मेरे वाला में ये देखिए। So oxidative stress, normal cells attacked by free radicals and oxidative stress. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे free radical oxidative stress में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है in brain, Alzheimer's, Parkinson's, autism, migraine, insomnia, depression, in eyes, retinal degeneration, lungs में asthma, COPD, allergies, chronic bronchitis, cancer, blood vessels में atherosclerosis, hypertension, varicose veins, elevated cholesterol and triglycerides, immune systems में chronic inflammation, autoimmune disorders, HIV, herpes, in joints, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, multi-organs like diabetes, chronic fatigue, skin में wrinkles, acne, eczema, psoriasis, in kidney chronic kidney disease and renal nephritis, heart में heart attacks, strokes, high BP, atherosclerosis and angina. So जिसको भी आपको लगता है कि इस तरह का disease है, that means definitely something wrong with the antioxidant level. Same goes with aging. So foods rich in antioxidants are berries, पालक है, and इतने सारे fruits हैं और veggies हैं, but मुझे नहीं लगता कि आप सब ये सब रोज खाते होंगे, वो भी raw form में. लेकिन पानी क्या है ना, हम लोग at least 2 to 3 liters daily पी लेते हैं. तो अगर हमें पानी की फॉर्म में वो antioxidants मिल जाए तो बात ही क्या है. So एक होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल. व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल? आपकी बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको नहीं होने देने के लिए क्षमता होती है किसी भी चीज़ में कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करें बाहर से. तो अगर हम कैंगन पानी पीते हैं हमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं कि हमें फ्री रेडिकल्स एलिमिनेट करने की क्षमता मिल जाती है कैंगन से. सिमिलरली अगर हम नॉर्मल पानी पिएंगे, कोई भी नॉर्मल पानी पिएंगे, वो डेड वाटर है, उसमें हमें कुछ फ़ायदा नहीं है वो पानी को पी के, क्योंकि हम एसिडिक एनवायरनमेंट में हैं, हम खाना भी एसिडिक खा रहे हैं, सब कुछ पॉल्यूशन भी ले रहे हैं. यानी कि हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स जो नॉर्मल है उससे कहीं ज़्यादा आ रहे हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं ले रहे कि उन फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकें. सो कैंगन उस टाइम पर हमारे लिए काम आता है. कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं बट ग्रीन टी भी इतना फायदा नहीं देती जितना आपको कैंगन देगा. सो कैंगन हैज एंटीऑक्सीडेंट्स इन एम्पल अमाउंट एंड इट्स ORP वैल्यू गोज अप टू -800 millivolt. So 1 glass of Kangen water has the similar antioxidant effects equivalent to 30 glasses of green tea, 64 apples, 16 tablets of vitamin C, 5 kg of broccoli, 38 carrots, 5 bunches of spinach, 94 bananas and 1 kg of blueberries. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक साथ इतना सारा खाना खा सकता है, but definitely पानी आप पी सकते हैं. So let's come to another property, that's alkaline. Is your body alkaline or acidic? अभी आपने बाहर क्या खाना खाया? Acidic खाना खाया, right? कुछ भी alkaline खाया क्या उधर? मिला कुछ अच्छा हेल्दी? नहीं. आपकी नज़र में हेल्दी क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं मिला बाहर. नेक्स्ट टाइम बोलना इनको. ओके. The impact of an acidic body on chronic lifestyle diseases and how alkaline minerals water help. So कुछ भी हमारा एसिडिक फूड से क्या क्या इफेक्ट्स है हमारे बॉडी में, ये आप इसमें देख सकते हैं. सेम जैसा हम लोगों को लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है वैसे ही हमारा जो बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी सेम प्रॉब्लम्स होंगी. सो अब कैंगन यहाँ पे कैसे हेल्प करेगा? कैंगन इज इलेक्ट्रिकली एल्कलाइज्ड वाटर. उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे? It is powerful antioxidants. It balances pH level. यानी कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जो एसिडिक हो गई है उसको बैलेंस कर देगा. कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि हम बहुत ज़्यादा एल्कलाइज तो नहीं हो जाएंगे, बट ऐसा कभी नहीं होगा. इनफैक्ट जनरेशन टू जनरेशन्स भी नहीं होगा, क्योंकि आप रहे ही ऐसे एनवायरनमेंट में रहें, आप कुछ भी कर लें, आप कभी भी पूरी तरीके से एल्कलाइज नहीं हो पाओगे.
तो अल्टीमेटली आप एसिडिक ही हो, लेकिन अगर आप पानी पी रहे हो कैंगन वाटर स्पेशली, तो आप बहुत हद तक एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। सो इसका ड्रिंकिंग pH होता है 7 pH टू 9.5 pH। इसका थर्ड प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर्ड। सो माइक्रो क्लस्टर्ड क्या है? आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 5 to 6 मॉलिक्यूल्स से बनकर 15 to 20 मॉलिक्यूल्स से बनकर कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। लाइक नॉर्मल कोई भी पानी ले लो, आप टैप वाटर भी ले लो, इतने हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं कि आप वो पानी पिएंगे आपके पेट में ब्लॉटिंग होने लगेगी। बट दिस कैंगन वाटर इट इज माइक्रो क्लस्टर्ड, यानी कि आपकी बॉडी के जो एक्वापोरिन्स हैं वो उसके अंदर से माइग्रेट करके आराम से आपको डिटॉक्सिफाई कर सकता है, लेकिन नॉर्मल पानी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। और ये एक प्रूवन फैक्ट है। आप कभी भी कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल के उस पर देख सकते हैं कि एक माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर और नॉर्मल वाटर के क्लस्टर में क्या डिफरेंस होता है। सो माइक्रो क्लस्टर्ड मीन्स it improves your hydration level. The water ensures quick and efficient transportation of vital nutrients and minerals to a distinct part of the body. यानी कि आप कोई भी न्यूट्रिएंट लेंगे और आप कैंगन के साथ लेंगे, वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल पानी लेंगे, पानी से वही चीज़ न्यूट्रिएंट लेंगे, तो वो नॉर्मली ऐसा कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। So 7 type of Kangen waters you can see. 2.5 pH, 5.5 pH to 6.5 pH, 7 pH, 8.5 to 9.5 and 9.5। ये मशीन इतने तरीके के पानी बनाती है और इसमें जो मेन है पीने का पानी वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। रेस्ट इज 2.5 pH, then 5.5 to 6.5 and 11.5। सो ब्यूटी वाटर, आपके स्किन का pH इज 6 to 6.5। सो आपका जो इनाजिक कैंगन मशीन है, इससे एक pH लेवल निकलता है दैट इज 6 pH एंड इट इज फॉर पर्सनल हाइजीन एंड स्किन केयर। इट एक्ट्स एज अ टोनर, इट एक्ट्स एज अ मॉइस्चराइजर एंड आप इससे अपने हेयर रिंस कर सकते हैं एंड यू कैन वाटर योर प्लांट्स एज वेल। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर दैट इज 11.5 pH जो आपके नॉर्मल वेजिटेबल्स होने के काम में आते हैं। तो आपने अभी देखा होगा, आपका सत्यमेव जयते में किसान जी का एक इंटरव्यू आता है, किसान थे उनका इंटरव्यू आता है कि आप जो है अपनी फसल में जो नॉर्मल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो ऑयल बेस्ड होता है, लेकिन अपने लिए वो चीज़ यूज़ नहीं करते, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बस ये आंसर किया था क्योंकि हमें वो बहुत मास प्रोडक्शन में करना पड़ता है और प्लांट्स को बचाने के लिए हमें ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं, हमारी मजबूरी है। बट अपने लिए हम प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वो जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं वो आप सबके पास पहुंच रहे हैं और आप नॉर्मल पानी से धो के वो सब्जी बनाकर खा लेते हो। बट उसका नुकसान क्या है, कभी आपने सोचा क्या वाकई में आप वो सब्जी को अच्छे से धो पाते हो और वो सब पेस्टिसाइड्स आपके पानी से निकल जाते हैं? डू यू रियली थिंक सो? ऐसा हो सकता है क्या कि ऑयल नॉर्मल पानी में घुल जाए? कभी नहीं। पर कैंगन वाटर से निकलता है 11.5 pH। अगर आप अपनी वेजीज को इस पानी में सोक करोगे तो आप कंपैरिजन देख सकते हो। ये टमाटोज आर सोक्ड इन नॉर्मल टैप वाटर और ये सोक्ड हैं इन 11.5 pH। आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हो। टमाटर वही है बट पानी अलग अलग है। दैट मीन्स ये जो येलो डिस्कलोरेशन आप देख रहे हो इज बिकॉज कि आपके ऑयली पेस्टिसाइड्स पानी में घुल गए हैं। सो स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर विल ब्रेक डाउन द पेस्टिसाइड्स एंड रिमूव देम फ्रॉम योर फूड। बेनिफिट्स ऑफ 2.5 स्ट्रॉन्ग। अब इसका एक और pH लेवल है दैट इज 2.5। 2.5 इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। सो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट ऑफ कैंगन वाटर 2.5 pH इज अगर किसी को भी स्किन में रैशेस हैं, सोरियासिस है या कभी भी एक्ने प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरी खुद की एक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आई थी, इट वाज आई थिंक इन द मंथ ऑफ मई। सो उसका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था बिकॉज ऑफ एक्ने एंड इनफैक्ट पस वाले एक्ने थे अच्छे खासे। एंड आई वाज रियली शॉक कि इसके फेस पर इतने एक्ने क्यों हैं, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सो हमने बस इतना किया कि उसको बोला कि आप 2.5 pH फेस पर स्प्रे करो अलॉन्ग विथ 5.5 pH और आपको नॉर्मल आपका 9.5 लेवल का पीना है। एंड ट्रस्ट मी विद इन 2 months मैंने उसका प्री और पोस्ट ऑप पिक इसलिए नहीं लिया बिकॉज शी वॉज जस्ट 17
मुझे भी ठीक नहीं लगा कि इस तरीके से मैं उसको फेस को इस तरह पब्लिकली लाऊं, बट देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक मीन्स वो इतना ग्लो कर रही थी विद इन 2 months कि मुझे लग ही नहीं रहा था दैट शी इज़ द सेम गर्ल। सो ये इतना इफेक्टिव है। सो यू कैन यूज़ इट एज अ माउथ वॉश एंड गार्गल। माउथ वॉश के लिए भी मैं इतनी ज़्यादा इसको आई कैन वॉश फॉर दिस 2.5 बिकॉज जब भी मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स करती हूँ, कोई भी एक्सट्रैक्शन हुआ या स्केलिंग हुई एंड बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है, जस्ट मेक दिस पेशेंट टू रिंस द माउथ विद 2.5 pH एंड ट्रस्ट मी, मिरेकल क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है विद इन 2 minutes। उसके वीडियोस भी हैं मेरे पास। 2 minutes के अंदर अंदर वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, जिससे मुझे ईजी हो जाता है कुछ भी ऑपरेट करना उस पर्टिकुलर एरिया में। इनफैक्ट मेरे खुद के एक पेशेंट थे जिनको लाइकन प्लैनस का इशू था। ही विजिटेड माई क्लिनिक। वो सिंगर थे, 1.5 years से उन्होंने गाना नहीं गाया था और वो डेंटिस्ट के पास क्यों जा रहे थे, बस अपना लाइकन प्लैनस दिखाने। एंड सेम टैबलेट्स मैंने उनको भी बोला लेने के लिए। सिर्फ एक चीज़ मैंने उनको बोला कि आप सब कुछ कर रहे हो 1.5 साल से, आप ना 2.5 से एक बार रिंस करो एंड स्टार्ट टेकिंग दिस 9.5 pH का पानी फॉर ड्रिंकिंग। एंड ट्रस्ट में वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे सामने गाना गा के गए हैं। जो सिंगर 1.5 साल से गाना नहीं गा पा रहा था, उसने 1 हफ्ते में मेरे सामने गा के गया। वी हैव अ रिकॉर्डिंग फॉर दिस पेशेंट। अभी मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी वो रिकॉर्डिंग, लेकिन या सो दैट्स इट विद कैंगन। सो से अलाउड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दिव्या मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि कैंगन वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में आप जहाँ जाइए वहाँ हर चीज़ के 1000 ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, और हमारे माइंड में कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। ऐसे में हम लेने जाते हैं कुछ और लेकर आ जाते हैं कुछ। लेकिन जब बात हो वाटर आयनाइजर की तो एक ही बात कहूँगी कि जो फैमिली से करे प्यार वो कैंगन से कैसे करे। जी हाँ।